Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. So today we are starting our NTA paper for NEET paper number 101. So start from the question number 1. Question 1 is the energy of an electron in excited hydrogen atom is minus 3.4 electron volt. Then according to Bohr's theory, the angular momentum of this electron in joule second is. So student, energy given is minus 3.4 electron volt in any excited state. So what is the formula of energy? Energy is minus 13.6 into Z square by N square. Now given energy is minus 3.4 equals to minus 13.6. This is in electron volt per atom. So I put here directly minus 3.4. Then for hydrogen atom Z is 1 and we have to find N square. So minus minus cancel, 3.4, 4 times 13.6. So N square is 4 and N is 2. Now you have to find angular momentum. So what is the formula of angular momentum? So it is mvr equals to nh upon 2 pi. Now put the value of n. So it is 2h upon 2 pi. Means final answer will be h upon 2 pi. Now what is the value of Planck constant h? So it is 6.62, 10 to the power minus 34 and pi is 3.14. So final answer should be 3.14, at least 2 times of 6.28. So approximately answer should be 2.11 into 10 to the power minus 34. Correct answer is 1. So moving to problem number 2, the shape of XeF3 plus. So student, we know shape of XeF2. XeF2 is Xe, then F and F. Now we are finding here F. So Xe donate its lone pair to fluorine. So inert gas having 8 electrons in its valence shell. So it is using 2 electrons for sharing with 2 fluorine atom. One, it is donating fluorine atom. Then it has 2 lone pairs. So shape should be T shape with presence of 2 lone pair. So it will be small disturbance there. So shape will be bent T shape. So correct answer is B. Question number 3. Flat pole interaction is present in both form of cyclohexane, chair form of cyclohexane, anti form of N-butane, fully eclipsed form of N-butane. So student, flat pole कहाँ होते हैं? जैसे आप कोई बोर्ड देखते हैं तो बोर्ड में जो टॉप कॉर्नर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं फ्लैट पोल. सो इधर H एंड H, ये जो हाइड्रोजन है ये है फ्लैट पोल. इनके बीच जो इंटरेक्शन है दैट इज फ्लैट पोल इंटरेक्शन. सो इट इज रिलेटेड विद बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन. सो करेक्ट आंसर इज. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज मोल रेशियो ऑफ Fe in FeO, Fe2O3 and Fe3O4 samples of equal weights is. So student, we have 3 samples. First one is FeO, then Fe2O3 and third one is Fe3O4. All these have equal weights and we have to find mole ratio of Fe in all these cases. So first find the moles of each sample. So mole is given mass upon molar mass. So let the mass of each sample is W. So given mass is W. Now molar mass. So students, atomic mass of Fe is 56 and oxygen is 16. Now FeO. So molar mass is 56 plus 16. So FeO equals to W by 2 and 72. Now Fe2O3, 56 into 2 plus 16 into 3. So it will be W 48 and 112. So this is 160. Now 56 into 3 plus 16 into 4. So 64 and 150 and 174.
So it will be 232. So these are the moles of FeO. This is moles of Fe2O3 and it is moles of Fe3O4. Now student, if we have 1 mole FeO, so 1 mole FeO means 1 mole of Fe, है ना. अगर आयरन ऑक्साइड 1 मोल है तो देखो 1 में 1 है, स्टोइकियो एन फैक्टर से चलो तो 1 मोल FeO, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 मोल Fe. लॉ ऑफ इक्वलेंस, एन फैक्टर नहीं बोलेंगे हम इसे. सो वी हैव हियर W by 72 मोल FeO. तो Fe भी कितना हो गया W by 72 मोल Fe. सिमिलरली Fe2O3 की बात करें तो देखो, अगर आपके पास 1 मोल Fe2O3 है तो Fe2O3 1 मोल है तो Fe कितना है 2 मोल, 2 मोल Fe. नाउ आपके पास है W by 160 मोल Fe2O3, तो Fe कितना हो गया, तो हम कहेंगे 1 में 2 है, तो अगर ये W by 160 है सो इट विल बी 2W by 160 मोल Fe. Similarly, if we have 1 mole Fe3O4, तो देखो Fe3O4 में आयरन तो 3 है ना, तो अगर ये 1 मोल है तो Fe आपके पास हो गया 3 मोल Fe. Now we have W by 232 मोल Fe3O4. Fe3O4, तो यहाँ पे Fe कितना हो जाएगा 3W divided by 232. So we have to find mole of Fe in each case. So in first case Fe is W by 72 mole. So first case Fe is W by 72. In second case it is 2W by 160. So this is 2W by 160. And in third case we have 3W divided by 232. So this is 3W divided by 232. So 1 by 72, 1 by 80, and this is 3 divided by 232. So multiply all these with 72. So you will find 1 ratio 72 by 80. 80 means 0.9 and it will be 0.93. So correct answer is 1 ratio 0.9 ratio 0.93. So next question is question number 5. CS2 and SO3 react to produce. So बच्चों आपको क्या करना है, CS2 की रिएक्शन SO3 से करानी है. अब ऐसी कोई इक्वेशन आपने देखी तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा आइडिया लगाओ. CS2 स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड SO3 स्ट्रक्चर लाइक दिस. अब अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करें तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, S इधर आ जाए, O इधर आ जाए. तो S इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स SO2 हो जाएगा, है ना. SO2 हो जाएगा और तो 2 मॉलिक्यूल कर दो बैलेंस करने के हिसाब से, क्योंकि SO तो कुछ पॉसिबल नहीं है. और अगर मैं ऑक्सीजन यहां लिया हूं सो इट विल बी C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O. मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है COS और एक पॉसिबिलिटी जो है अगर ऑक्सीजन यहां आएगा तो SO2. सो थोड़ा सा आइडिया लगा के ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी में ऐसा. सो CS2 एंड SO3 रिएक्ट टू प्रोड्यूस COS कार्बोनाइल सल्फाइड और क्या हो जाएगा SO2. सो करेक्ट आंसर है COS प्लस SO2. So question number 6 is which one of the following compound is not a planar. अब बच्चों प्लेनर वो होता है जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना हो तो आपके पास sp3 विद लोन पेयर होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो सारे जो एटम्स है कार्बन एटम दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अब यहाँ पे कार्बन sp3 जरूर है लेकिन विद लोन पेयर है तो ज्योमेट्री इसकी प्लेनर रही. अब फर्स्ट ऑप्शन में भी देखो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लोन पेयर भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, है ना.
अब अगर इसको मैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दूं तो क्या होगा, ये कंपाउंड जो है देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 मींस पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, और अगर इस लोन पेयर को भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज 4n इक्वल्स टू 8 मींस n इक्वल्स टू 2, यानी ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो स्टेबल ही नहीं होता, इसका मतलब यहां पे जो केस 2 है लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अब इससे प्लेनरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है तो ये प्लेनर कैसे होगा बताओ, है ना, दोनों लोन पेयर क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता तब तो फिर भी ये क्या हो जाता, प्लेनर हो जाता, कैटायन बन जाता, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे ये तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, इसके कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। सो मुझे ऑक्सीजन पे दोनों लोन पेयर क्या मानने पड़ेंगे कि दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन पे ही है। तो जब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं तो ये प्लेनर नहीं हो सकता ड्यू टू दिस रिपल्शन। सो which of the following compound is not a planar? So answer will be option A. Question number 7. A perfect gas of a given mass is heated first in small vessel and then in large vessel such that their volume remains unchanged. The P-T curves are. तो स्टूडेंट परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस मान लेते हैं जिसका मास फिक्स्ड है, उसको पहले एक छोटे कंटेनर में हीट किया, उसके बाद में उसको बड़े कंटेनर में हीट किया, और उसके बाद में ये कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन कंटेनर फर्स्ट और सेकंड केस में क्या है, अलग अलग। तो P और T कर्व्स आपको बताने। सो परफेक्ट गैस मतलब अप्लाइंग आइडियल गैस, PV इक्वल्स टू nRT। सो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nR डिवाइडेड बाय V एंड T। सो स्टूडेंट Y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx के अकॉर्डिंग चले तो y और x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और m जो है दैट इज स्लोप nr अपॉन v। अब फर्स्ट केस में क्या था, कंटेनर आपका स्मॉल था, और सेकंड केस में क्या है, तो हम कहेंगे जो वैसल है वो लार्ज है, nr अपॉन v लार्ज वैसल डिवाइडेड nr बाय v एंड देन t। तो प्रेशर और टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ग्राफ तो क्या आएगा, P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ V स्मॉल है तो स्लोप बड़ी आएगी, यहाँ V लार्ज है तो स्लोप छोटी आएगी। तो ग्राफ विल बी लीनियर बट स्लोप जो है दैट विल बी डिफरेंट। सो करेक्ट आंसर विल बी D. So question number 8. In the given reaction, this is allyl bromide, sodamide and then heated, X will be. So student एलाइल ब्रोमाइड को क्या किया, सोडामाइड के साथ रिएक्ट किया। अब आपको पता है सोडामाइड अमाइड NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। सो फर्स्ट जो आपका कंपाउंड होगा दैट विल बी क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन के थ्रू ये बना लेगा एलीन। ऐसा एक क्वेश्चन हमने शायद एक दो पेपर पहले भी किया था, ये बना लेगा एलीन, और एलीन में हो जाता है आइसोमराइजेशन, है ना। ये तो समझ में आ गया आपको, ये Br नेगेटिव हो गया और यहाँ से H प्लस चला जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब एलीन आइसोमराइज्ड होके क्या बना लेगा, प्रोपाइन। अब आप देखो प्रोपाइन टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे। अब वो एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कॉर्नर पे होता है, उसमें ये जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। अभी आपके पास मीडियम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला बेसिक मीडियम, और सोडियम प्लस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपाइनाइड, सोडियम प्लस प्रोपाइनाइड माइनस। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस, ये प्लस है और ये C माइनस है, सो करेक्ट आंसर इज सोडियम प्रोपाइनाइड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, average oxidation number of carbon in C3O2 and Mg2C3. So student C3O2 is carbon suboxide. कार्बन के तीन ऑक्साइड होते हैं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, एंड दिस इज कार्बन सबऑक्साइड।
तो मैं एवरेज बता देती हूँ। और वैसे भी देखो ये कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अब ये ऑक्सीजन -2 है तो ये +2, दिस इज अगेन -2 तो ये क्या हो गया +2। तो तीनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 0 + 2 मीन्स 3x इक्वल्स टू कितना है 4। सो x इक्वल्स टू 4/3। तो C3O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है 4/3। नाउ Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड, Mg2C3। तो बच्चों देखो Mg चार्ज होता है +2, वी हैव 2 Mg +2, तो दोनों Mg का चार्ज मिला के +4 है। सो C3 का चार्ज कितना हो गया -4। तो 3 कार्बन एटम का चार्ज जो है दैट इज -4। सो x विल बी -4/3। सो करेक्ट आंसर इज 4/3 and -4/3 means option 2. Next question is the change in entropy delta S is positive for endothermic reaction. Student note here endothermic reaction. If enthalpy change delta H occurs at the same temperature T, then the reaction is feasible. So for the feasibility of a chemical reaction, we should know about delta G. So delta G equals to delta H minus T delta S. अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। अब गिवन क्या है बच्चों, तो आपको गिवन है डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। तो देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है माइनस टी और डेल्टा एस की वैल्यू अगेन क्या है पॉजिटिव है। अब डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांसेस कब है, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ये वैल्यू बड़ी होगी, इसको 5 रख दो, इसको 10 रख दो, है ना, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए डेल्टा एच हो जाए। सो फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन T delta S should be greater than delta H, जो करेक्ट आंसर है C। Now question number 11, N2 plus H2 gives X, जो कि गैस होना चाहिए, then X reacts with CO2 at high pressure, then Y, and Y on heating gives Z and water. So in the above reaction, in the above sequence of reaction, Y and Z are respectively. So student first equation तो clear है, when nitrogen reacts with hydrogen, then we have no any other option. It should be twice NH3. Now NH3 अगर हम CO2 के साथ NH3 को रिएक्ट कराएं तो अमोनिया CO2, अगर वाटर होता तो अमोनियम कार्बोनेट बनता, बट वाटर नहीं है, तो अमोनिया और CO2 आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अमोनिया प्लस CO2, इट विल बी NH2 COO NH4, अमोनियम यूरिथेन, और यू कैन से अमोनियम कार्बेमेट, या तो अमोनियम यूरिथेन कह सकते हैं और आप कह सकते हैं अमोनियम कार्बेमेट। अब इसको हीट कर लो, अब हीट कर लो तो देखो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा H2NO, सो इट विल बी NH2 C double bond O NH2 मीन्स दिस इज यूरिया। सो X तो है अमोनिया, Y है अमोनियम कार्बेमेट और Z है यूरिया। सो Y and Z means ammonium carbamate and urea. Correct answer is B. Question number 12. In the given reaction CH3CH2 CHBr CH double bond CH2 means this is 3-bromo 1-pentene when reacts with alcoholic KOH on heating gives X. Now X will be. So student alcoholic KOH आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, इक्वेशन क्या है बीटा एलिमिनेशन। नाउ बीटा एलिमिनेशन है मींस बीटा हाइड्रोजन शुड बी एलिमिनेटेड, CH3CH2 CHBr है आपके पास, देन CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये Br माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो Br जिससे कनेक्टेड है दैट इज अल्फा। नाउ दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा।
अब अगर आप ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे तो आपको कॉन्जुगेटेड की जगह क्यूमुलेटिव, है ना, डबल बॉन्ड पास पास आ जाएगा, ये एल्कीन मिलेगी। देखो ये एल्कीन तो लेस स्टेबल है, आई थिंक दिस इज क्यूमुलेटिव एल्कीन, सो दिस इज लेस स्टेबल। और अगर आप इस बीटा डैश को अगर रिमूव करते हो देन यू विल फाइंड conjugated alkene like this, CH3CH double bond CH and then CH double bond CH2। तो alternate double bond वाली alkene क्या होती है? Conjugated alkene which is more stable than alkene like this। minor product कहता तो जरूर बना लेते हैं हम cumulative alkene। So X will be first option तो नहीं हुआ, ऑप्शन हो गया आपका C, conjugated alkene CH3CH double bond CH then CH double bond CH2। correct answer is C। now question number 13, BeO beryllium oxide plus carbon gives carbon monoxide plus X on hydrolysis again gives beryllium hydroxide plus Y। so X and Y in the above sequence are respectively। So student, when beryllium oxide treated with carbon and you have given CO means carbon और ऑक्सीजन तो रिएक्ट करके CO बना के निकल गए और आपको मिला X। अब X का हाइड्रोलिसिस किया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो बेरिलियम ही बनना होता तो फिर रिएक्ट क्यों कराया, है ना। बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप कार्बन से कराते तो आपको मिलेगा बेरिलियम कार्बाइड BeO एंड अगर हम ले लें यहाँ पे C, सो यू विल फाइंड बेरिलियम कार्बाइड क्या होता है BE2C। BE2C मीन्स बेरिलियम कार्बाइड। नाउ व्हेन बेरिलियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड का क्या कर लें हम, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ताकि 2CO तो एलिमिनेट हो जाए और आपको जो मिलेगा दैट इज X यानी कि BE2C। बैलेंस्ड है इक्वेशन, ट्वाइस CO एलिमिनेट हो गया, BE2C बेरिलियम कार्बाइड। अब बच्चों ध्यान से देखो, बेरिलियम BE2C की बात करें तो बेरिलियम बीइंग +2, वी हैव 2 बेरिलियम एटम, 2 बेरिलियम आयन, तो 2 बेरिलियम का चार्ज हो गया +4, तो कार्बन क्या हो गया -4 और वाटर में क्या है H+ एंड OH-। सो BE2C को जब तुम हाइड्रोलाइज कराओगे तो कार्बन बीइंग -4 रिएक्ट्स विद 4H आयन एंड दिस इज मीथेनाइड बेरिलियम कार्बाइड, तो हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा मीथेन एंड यू विल फाइंड ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। सो X is beryllium carbide and Y is methane। so correct answer will be beryllium carbide। तो देखो वैसे ही सब में है तो ये तो बनना ही है आपका, और Y क्या है मीथेन, so this is acetylene CO2 ethane, so correct answer is C, methane। question number 14, 2 gram molecule, gram molecule means moles, 2 moles of PCl5 are heated in a closed vessel of 2 liter capacity, means volume जो container का है that is 2 liter। when the equilibrium is attained PCl5 is 40% dissociated into PCl3 and Cl2, the equilibrium constant is। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, PCl5 डिसोसिएशन है तो PCl5 इक्विलिब्रियम है मतलब रिवर्सिबल इक्वेशन PCl3 plus Cl2। so 2 gram molecule means initially this is 2 0 0 then 2 minus X, this is X, this is X, तो ये तो हो गए मोल्स। अब जनरली जो वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर होता है, लेकिन यहाँ आपको गिवन है 2 लीटर, तो एक्टिव मास क्या होता है मोल पर लीटर, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल पर लीटर हो गया। नाउ PCl5 is 40% dissociated, so student X जो है that is A alpha, A क्या है इनिशियल मोल जो कि है 2 एंड अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40%, so X is 0.8। now put the value of X, so 2 minus 0.8 divided by 2, then 0.8 divided by 2 means 0.4 and again this is 0.4, so X by 2 is 0.4 and again 0.4। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। so Kc क्या होगा, तो Kc is active mass of PCl3 into active mass of Cl2
डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ PCl5। सो PCl3 कितना है x/2, x की वैल्यू क्या थी 0.8, सो दिस इज 0.4 into 0.4 divided by 2 minus 0.8 means 1.2 divided by 2 means 0.6. So आप इसको solve कर लो, then you will find I think 0.267. So correct answer is 0.267. Question number 15. Match the physical changes in list 1 with their relations given in list 2. So student, आपके पास डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा S नॉट और डेल्टा G नॉट के फॉर्मूले बना के मैच करने हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अब बच्चों देखो डेल्टा G अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है तो डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू -NFE सेल, यानी डेल्टा G मीन्स P ऑप्शन जो है वो आपका 2 से मैच कर रहा है। तो P2, अब देखो P2 तो वैसे तो मैं फर्स्ट में मिल गया और तो कहीं है ही नहीं, आगे करने की जरूरत भी नहीं है, बट हम चेक कर लेते हैं। नाउ डेल्टा H तो फॉर्मूला पढ़ रखा है तुमने, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपके पास दिया हुआ है देखो डेल्टा U प्लस P, तो डेल्टा E और डेल्टा U एक ही बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V। तो ये है आपका Q मैच हो रहा है 1 से, तो P2 है Q1 है। नाउ डेल्टा S एंड डेल्टा G नॉट, तो एक फॉर्मूला और आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC रिएक्शन कोशेंट। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 हो जाता है और QC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के बराबर कर देते हैं, तो डेल्टा G 0 हो गया, तो डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू माइनस RT ln KC। तो आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि S, ये मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, थर्ड से, यानी S मैच कर रहा है 3 से। अब क्या बचा हमारे पास R, डेल्टा S, तो बच्चों डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, DQ रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं तो देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओ तो डेल्टा E इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E भी कितना हो जाएगा 0, सो Q इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस W। अब अगर W रिवर्सिबल है तो Q रिवर्सिबल आ जाएगा। नाउ Q बाय T इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस W बाय T। अब W रिवर्सिबल का फॉर्मूला सबको याद है, -2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय T कर दो, तो टेम्परेचर तो वैसे ही कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब NR लॉग बेस 10 को लॉग बेस E कर देते हैं, तो लॉग बेस E V2 बाय V1 और आगे क्या आ जाएगा NR, ये हो गया डेल्टा S। यानी डेल्टा S जो है यानी कि R ऑप्शन मैच कर रहा है 4 से, तो R को मैच करा लेते हैं 4 से। अब चेक कर लो, तो P2 है, Q1 है, R 4 है और S 3 है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। So question number 16, the given reaction is CH3 single bond CH double bond CH single bond CH2OH in presence of HBr gives 1 2 3 bromo 1 butene. So mechanism of the reaction बताना है, कौन सा mechanism काम कर रहा है। तो देखो बच्चों ये आपके पास है 2 butenol CH3 CH double bond CH CH2OH, क्लियर। तो 2 butenol 1 2 3 4, हाँ। अब देखो HBr से क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, अल्कोहल पे प्रोटॉन अटैक करेगा, सो इट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड OHH प्लस। नाउ प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा तो वाटर तो एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या बना,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। अब आप देखो ये है एलाइलिक कार्ब कैटायन, है ना, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन ही हो गया, तो कार्ब कैटायन, तो दिस इज एलाइलिक कार्ब कैटायन एंड एलाइलिक कार्ब कैटायन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल भी है। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ प्लस आ गया, तो ये बना आपका CH3 CH प्लस देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो कार्ब कैटायन बनने के बाद सेकंड अटैक आप देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, न्यूक्लियोफाइल HBr है तो Br माइनस, तो Br माइनस अगर यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका हो गया CH3 CH Br देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, यानी पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बना, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, मींस दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज SN1 मैकेनिज्म। दो स्टेप में पूरा हो रहा है, कार्ब कैटायन बन रहा है, सो करेक्ट आंसर इज SN1 मींस ऑप्शन 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द लिगेंड शोन हियर इज, तो एक लिगेंड है, दो नाइट्रोजन एटम है, तो देखो नाइट्रोजन एटम्स आर 2 मींस इट इज बाइडेंटेड लिगेंड, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। नाउ स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन देखो 2,2' डाइपिरिडाइल, तो दो पिरिडीन होने चाहिए ना, पिरिडाइल मींस पिरिडीन एंड अगेन पिरिडीन, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, तो पिरिडाइल भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। नाउ फिनेंथ्रीन क्या होता है, तो देखो एक रिंग होती है तब तो हम बोलते हैं बेंजीन, दो रिंग होती है तो एंथ्रासीन, एंड इफ देयर आर 3 फ्यूज्ड रिंग मींस फिनेंथ्रीन। तो फिनेंथ्रीन ये होता है, यहाँ तो दो नाइट्रोजन एटम है, मींस ये ऑप्शन भी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज 1,10 फिनेंथ्रोलिन, करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड A on oxidation with hot KMnO4 in alkaline medium gives 2 compounds। दो कंपाउंड्स आपको दिए हुए, 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड and 1 2 3 4 5 pentane 2 on। So compound A will have the structure, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन एल्कीन, सेकंड ऑफ एल्कीन, थर्ड और नेक्स्ट जो है दैट इज एल्काइन। तो बच्चों एल्काइन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्डेड वाली साइड से टूट जाएगा, और यहाँ भी COH यहाँ पे भी COH, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो एल्काइन के तो दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं, तो C और D में से आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका है A और B में से। अब चेक कैसे करेंगे, देखो तो जो डबल बॉन्ड वाली साइड है वो ही आपकी कन्वर्ट हुई है COH और C डबल बॉन्ड O में, तो बस आप इसी को सेट करो, देखो जो आपका आंसर है उसी से वापस क्वेश्चन बनेगा। कौन सी एल्कीन थी, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या है COH, मतलब ये कार्बन ये डबल बॉन्डेड था, ये स्प्लिट हुआ है। अब यहां से देखो ये C डबल बॉन्ड हो, ये रहा कार्बन आपका, एक तरफ तो मिथाइल है और उधर क्या है प्रोपाइल, मींस CH2 CH2 CH3। तो जब तुम इसको KMnO4 हीट या हॉट KMnO4 एल्केलाइन मीडियम है ना, तो इसको हीट करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्डेड वाली साइड से टूट जाएगा, तो टर्मिनल एल्काइन तो क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड भी बनेगा, तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है तो ये COH बना लेगा। लेकिन कीटोन जो है ये देखो कीटोन है आपका CH3 CH2 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O और क्या है CH3, ये डायरेक्ट बॉन्डेड है ना, तो ये क्या हो गया पेंटेन 2 ऑन, है ना, पेंटेन 2 ऑन। तो ये जो एल्कीन है इसको अगर आप डबल बॉन्ड से ब्रेक करते हो तो ये दो कंपाउंड बनते हैं, देखो 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड एंड पेंटेन 2 ऑन, मींस करेक्ट आंसर आपका ये वाला एल्कीन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो देखो ऑप्शन 1 देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है और टोटल कार्बन क्या है 7। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 19, इन एन irreversible process taking place at constant T and P and in which only PV work is being done, the change in Gibbs energy dG and change in entropy ds satisfy the criteria. So student,
इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, आप यहां से थोड़ा सोचो कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या मैं आपसे कहूं कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल, और ऑल नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल एज वेल एज और नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो जो भी वर्क डन होगा, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन सिस्टम काम करेगा वो ठीक है, लेकिन डेल्टा जी पूछा है, तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी को, वो होना चाहिए डेल्टा जी, या आपसे कहा जाए डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी नेगेटिव, मींस लेस देन 0। ठीक है, अब डी एस बताना है, चेंज इन एंट्रोपी। तो बच्चों डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्मॉल चेंज की बात करें तो डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डेल्टा एस। अब एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो डी एच के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी जी इक्वल्स टू डी ई या डी यू कह दो, इंटरनल एनर्जी, माइनस पी डी वी माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो डेल्टा एस के रिस्पेक्ट में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डी जी क्या है, नेगेटिव। अब बच्चों देखो, बताना है आपको डी एस जो है वॉल्यूम, है ना, ये जो डेटा है ये क्या इंडिकेट करता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू भी कांस्टेंट है। तो V कांस्टेंट एंड U कांस्टेंट। तो अगर मैं कहूं V कांस्टेंट है तो dV कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से ये dV वाला टर्म हटा देते हैं, 0। सिमिलरली U कांस्टेंट है, तो U कांस्टेंट है मतलब du भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी टर्म हटा देते हैं। तो देखो नेगेटिव वैल्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ T डेल्टा S। अब नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस शुड बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो माइनस टी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू माइनस वैल्यू। सो ये टर्म कब आएगा, जो हम कहेंगे एस जो है, डी एस जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी शुड बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी जी तो आपका होना चाहिए नेगेटिव और डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन 4th। सो सेटिस्फाइंग कंडीशन आपका हो गया डी। सो करेक्ट आंसर इज डी, बट आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। सो डेल्टा एच की जगह हमने लिख दिया ई को यू लिख दिया, माइनस की जगह यहां हमने माइनस कर दिया, यहाँ पी होना चाहिए। हालांकि आंसर में वो चेंज नहीं आएगा, v कांस्टेंट है तो dv 0, प्लस माइनस जो भी होता 0 हो जाता, और u कांस्टेंट है तो du भी 0। तो आंसर विल बी सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, each of 3 metals x, y and z were turn into aqueous solution of the other two. x plus salt of y or salt of z equals to y or z plus salt of x. Which observation is probably incorrect? So बच्चों आपके पास x है, x को क्या किया, salt of y में डाल दिया या salt of z में डाल दिया। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, y में डाला तो y आपका डिस्प्लेस हो गया, y आपका डिस्प्लेस हो गया, और x जो है वो x का सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली x को जब सॉल्ट ऑफ z में डाला तब भी क्या हुआ, तो हम देख रहे हैं कि z आपका डिस्प्लेस हो गया, प्लस आपको क्या मिला, तो हमें मिला सॉल्ट ऑफ y, सॉरी सॉल्ट ऑफ x, z डिस्प्लेस हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को देख के हम कह सकते हैं कि x जो है वो सॉल्ट फॉर्म में आ रहा है ना, यानी x की रिएक्टिविटी जो है वो y और z से ज्यादा है।
तो इतना सीन तो क्लियर है कि रिएक्टिविटी ऑफ x ग्रेटर देन y एंड z। अब y z में कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये अभी भी क्लियर नहीं है ना, लेकिन ये क्लियर है x इज मोर रिएक्टिव देन y और z, क्योंकि y z क्या है तो हमें पता ही नहीं। तो मुझे सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये बात तो कंफर्म है कि y और z कभी भी x को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो देखो y प्लस सॉल्ट ऑफ x, नो रिएक्शन, ठीक है, नो एक्शन ऑब्जर्व, क्योंकि x ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नाउ y प्लस सॉल्ट ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस सॉल्ट ऑफ y, ऐसा तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं खुद को ही कि y ज्यादा रिएक्टिव है या z, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। नाउ z प्लस सॉल्ट ऑफ x गिव्स x प्लस सॉल्ट ऑफ z, ये गलत हो जाएगा क्योंकि z जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू x, तो z कभी भी x को डिस्प्लेस नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी C। Now question number 22, SCl2 sulfur dichloride is the best known dihalide of sulfur, the hybrid state of sulfur in SCl2। So बच्चों SCl2 sulfur is forming two single bond with two chlorine atom। Now sulfur वैलेंस शेल में सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन से ये यूज कर रहा है, मीन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4, मीन्स 2 lone pair। So here we have bond pairs 2, lone pairs 2। Now bond pair plus lone pair equals to number of hybridized orbitals। So number of hybridized orbitals, here number of hybridized orbitals is 4। 4 orbitals are taking part in hybridization, then first is S, then P plus P plus P। So correct answer is sp3 hybridization, option 2। Now question number 22, which of the following is correct for the velocity of electron? So you have to plot a graph between Vn, Vz, Vn, or all are correct। So we can see the formula of velocity of electron in Bohr's model, Bohr's orbit 2.186 into 10 to the power 6 into z by n। If 10 to the power 6 then it is meter per second and 10 to the power 8 means centimeter per second। So you can see V and Z directly proportional and V and N inversely proportional। So V and N inversely proportional means hyperbola। So graph C is correct। So answer C। So next question, which oxide of carbon is obtained when potassium hexacyanoferrate second is warmed with sulfuric acid? मीन्स पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 इज हीटेड विद H2SO4। सो बच्चों काम का तो नहीं है, H2SO4 एक को सॉल्यूशन लेना पड़ेगा वाटर, तो अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो देखो पोटेशियम तो बना देगा K2SO4, आयरन बना देगा FeSO4, नाइट्रोजन बना देगा आपका अमोनियम सल्फेट, और आपके पास जो कार्बन है दैट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। सो वैसे तो लवन ही करना है बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में अवॉइड भी कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ए। सो क्वेश्चन नंबर 24, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। सो वी हैव गिवन कंसंट्रेशन 0.5 नॉर्मेलिटी of an electrolyte at 25 degrees centigrade is 0.0000045 Simon centimeter inverse। Specific conductance means kappa। Now the equivalent conductance of this electrolyte at infinite dilution means lambda infinity V, equivalent conductance, this is 300 Simon centimeter square equivalent inverse। The degree of dissociation of alpha, degree of dissociation of the electrolyte is, means we have to find alpha। So student, first find equivalent conductance at given concentration lambda V at C concentration। So direct formula लगा दो, formula is 1000, formula is kappa into 1000 upon C। ठीक है,
अब देखो 1000 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कापा जो है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में डायरेक्ट पुट कर दो, तो 0.0045 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना है 0.5. सो 1 2 3 4 5 10 to the power 5 0.5. 10 to the power 4 10 to the power 5 कैंसिल, मीन्स ये हो गया 45 डिवाइडेड बाय 50. नाउ अल्फा फाइंड करना है, लैम्डा इंफिनिटी भी दिया हुआ है. सो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, तो फॉर्मूला क्या है, कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन इज 45 डिवाइडेड बाय 50 and at infinite dilution this is 300. Now solve this. This is 9, so 9 3, so this is 3 divided by 1000 means 0.003. So correct answer is C. In the given reaction C6H5 C double bond O, then C double bond O C6H5, फर्स्ट आपको रिएक्ट कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट विल बी. सो सिंपल, डाई कीटोन्स है C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5. नाउ दोनों देखो एक साथ हम रिएक्ट करा दे, C डबल बॉन्ड O यहाँ टूट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगेन ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और फर्स्ट टर्म CH3MgBr से रिएक्ट करा देते हैं. एक्सेस मतलब 2 मोल्स चाहिएगा, 2 बार अटैक होगा तो. सो ये आ जाएगा आपके पास C6H5C, यहाँ आ जाएगा CH3OMgBr, अगेन C, प्लस माइनस जोड़ना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, OMgBr एंड C6H5. नाउ हाइड्रोलिसिस कर दो. अब अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्लियर है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस MgBrOH एलिमिनेट हो जाएगा. सो आंसर इज C6H5 CH3OH CH3 C6H5. अब बच्चों वैसे तो ये डाईऑल्स है, विसिनल डाईऑल्स है ना, तो डाईऑल्स क्या होते हैं आगे शो करते हैं पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. मान लो अगर आपके पास प्रोटॉन और होता तो ये प्रोटॉन क्या करता, यहाँ अटैक करता, ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करता तो वाटर बन के एलिमिनेट हो जाता, तो आपको मिलता C6H5C CH3. मान लो एग्जाम में आपसे एक स्टेप आगे पूछ ले तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. CH3 C6H5, ये आपका हो गया प्रोटॉन और यहाँ हो गया OH. अब देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड शिफ्ट करना है तो ये फिनाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा. तो आपके पास जो आंसर है दैट इज C, यहाँ प्लस हो गया, ये क्या है CH3 देन CH3 C6H5 और ये C6H5 एंड OH. अब ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, प्रोटॉन वापस एलिमिनेट हो जाएगा. तो आपका आंसर जो है दैट इज लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 फिनाइल एंड फिनाइल. ठीक है, पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसे, पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट. लेकिन अब देखो ऐसा कोई आंसर आपके पास नहीं है, आपके पास जो आंसर है वो डायरेक्ट यहीं पे है ना, यही आंसर है, डाईऑल्स बना के छोड़ा है ऑप्शन 1. तो आपको फिलहाल यही करेक्ट करना है, ऑप्शन ए. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फिनाइल C6H5 then CHOH C double bond O NH2. What happens when this compound treated with bromine and KOH? Now students identify here, this is amide, this is bromine and alkali. So this is Hofmann bromamide reaction. अब Hofmann bromamide जो है that is an example of degradation reaction. अब आपको पता है अमाइड है, ब्रोमीन है, एल्केली है, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड. और हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O जो है ये डिग्रेड हो जाता है, ये माइनस कर दो, K2CO3 बन के बाहर आ जाएगा. सो
डायरेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करेंगे हम हॉफमैन ब्रोमाइड का। सो अमाइड से अमाइन बन जाता है यानी दिस, लेकिन यहाँ अमाइन बना, यहाँ OH भी है। सो ये कंपाउंड आप चेक कर लो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 27, पीवी कर्व दिया है आपको, साइक्लिक कर्व है। इन द प्रेजेंट ग्राफ द एरिया ऑफ सर्कल ए एंड बी आर 25 यूनिट एंड 22 यूनिट रिस्पेक्टिवली, वर्क डन विल बी इन द यूनिट। तो देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि ये कर्व देखो, ये फर्स्ट है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब गैस क्या, अगर मैं गैस को इमेजिन करूं तो गैस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो गैस कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चले तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सर्किल ए में वर्क डन कितना है, प्लस का 25। नाउ सर्कल बी देखो, यहाँ पे जो है ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन तब हो सकता है, गैस एक्सपेंड तो अपने आप होती है, मतलब वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो एक्सपेंशन के केस में हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना है 20। अब आपको ओवरऑल फाइंड करना है, तो W इक्वल्स टू प्लस का 25 माइनस का 20 मतलब 5 यूनिट वर्क हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 28, आयोडीन क्रिस्टल्स आर एडेड टू लीकर अमोनिया and the brown precipitate so formed is separated, dried and spread on floor. On walking over the precipitate, harmless explosion occurs releasing colored gas. The PPT and colored gas are respectively. So student, ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके है नहीं, बट अब है तो अपन सॉल्व तो कर लेते हैं। आयोडीन की रिएक्शन अगर आप लीकर अमोनिया से करेंगे, अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन और अमोनिया मिलके क्या बनाते हैं, एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब देखो ब्राउन पीपीटी जो बनेगा वो ब्राउन पीपीटी आपका बनेगा NH3NI3। लर्न करना है आपको। अब ये जो ब्राउन पीपीटी है, अभी क्या कह रहा है, इसको बाहर निकाल दो, ड्राई कर दो, स्प्रेड ऑन द फ्लोर कर दिया, और इसके ऊपर थोड़ा सा चले मतलब थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो हल्का सा भी प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ये ब्राउन पीपीटी जो है ये क्या कह रहा है, हार्मलेस एक्सप्लोजन अकर्स रिलीजिंग कलर्ड गैस। तो कलर्ड गैस तो क्या होगी, आयोडीन, और हल्का सा प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन जो हार्मलेस गैस है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, और एक्स्ट्रा क्या बनेगा NH4I। तो क्या पूछा है इसने, पीपीटी एंड कलर्ड गैस। तो पीपीटी तो आपका ये हो गया NH3NI3, और कलर्ड गैस जो है तो आपको पता है आयोडीन इज वॉयलेट कलर्ड गैस, तो आयोडीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द रिएक्शन 4A plus B gives 2C plus 2D, the statement not correct is, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो रिएक्शन है हमारा 4A plus B gives 2C plus D। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट है तो डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट है तो फॉर्मेशन या अपीयरेंस। तो डिसअपियरेंस यानी साइन नेगेटिव। अब यहाँ पे 4 मोल है तो 1 डिवाइडेड बाय 4, चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली जब ये 4 मोल डिसअपियर हो रहे हैं तो ये 1 मोल डिसअपियर हो रहा है, मीन्स माइनस dB बाय dt इक्वल्स टू 2 मोल पे चल रहा है C, तो dC बाय dt इक्वल्स टू dd बाय dt। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज 1/4 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B है ना, A की डिसअपियरेंस रेट का क्या है 1/4 ही, तो dA बाय dt माइनस का 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड क्या है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B।
तो देखो dc बाय dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ c, ठीक है। अब ये देखो 1/2 है इक्वल्स टू क्या है माइनस db बाय dt, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है 1/2 है। अब 1/2 को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा 2, यानी c के अपीयरेंस की रेट b के डिसअपियरेंस रेट की कितनी है डबल है, लेकिन यहाँ तो हाफ दिया है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। थर्ड एक बार चेक कर लेते, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ a, तो चेक कर लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d यानी dd बाय dt इज हाफ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ d इज हाफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ a। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ d यानी कि dd बाय dt a का हाफ कैसे है, a का तो 1/4 है, ये भी गलत लग रहा है। अब रेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c एंड d आर इक्वल, तो देखो 2c + 1d है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकता। इवन आई थिंक ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे बच्चों, बी सी डी, या फिर क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30th, इफ द सॉल्ट्स M2X, QY2 and PZ3 have the same solubilities but less than 0.1 m, their KSP values are related as. So student first salt है M2X, second salt है QY2 और थर्ड सॉल्ट है आपका PZ3। तो देखो M2X मतलब बाई मोनोवेलेंट, ये हो गया मोनो बाईवेलेंट, ये हो गया आपके ट्राई मोनोवेलेंट, ठीक है। तो KSP का फॉर्मूला क्या है, KSP का फॉर्मूला है x की पावर x, y की पावर y, सॉल्युबिलिटी x प्लस y। x और y सेम नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला बाईवेलेंट तो x की वैल्यू 2 रख दो, मोनोवेलेंट तो 1 रख दो। तो फर्स्ट केस में देखो 2 की पावर 2, देन 1 की पावर 1, और सॉल्युबिलिटी क्या हो गया 2 + 1। सो फर्स्ट केस में सॉल्युबिलिटी हो गया 4s³, किसका M2X का आंसर। देन QY2, तो QY2 भी बच्चों वही है ना, Q तो मोनोवेलेंट, Q तो बाईवेलेंट हो गया, Y आपका एक बाईवेलेंट हो गया एक मोनोवेलेंट हो गया, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, और सॉल्युबिलिटी क्या हो गया 2 + 1। तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मोनो बाई मोनो, आंसर सेम आएगा 4s³। अब PZ3 मीन्स ट्राईवेलेंट और मोनोवेलेंट, तो PZ3 का जो आंसर है दैट इज 1 की पावर 1, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद S 3 + 1, यानी 3 3 = 9, 3 = 27 S4, ठीक है। तो देखो M2X और QY2, M2X और QY2 इनका तो KSP क्या आएगा सेम, और वैल्यू कितना है 4s³। और जो आपका PZ3 है, PZ3 का जो वैल्यू है दैट इज 27s4। अब बच्चों S की वैल्यू जो है वो 0.1 से कम रखनी। अगर मैं एक बार 0.1 भी रख लूं तो देखो 0.1 को 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और यहाँ पे क्या रखोगे 0.1 इंटू 0.1, देन मल्टीप्लाई फिर 0.1 और 0.1। तो ये डेटा आपके पास लेस आएगा, ये डेटा की वैल्यू क्या आएगी ज्यादा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 ही हो रहा है, उधर डिवाइडेड बाय 10 to the power 4 हो रहा है, ठीक है। तो 4s³ जो है दैट इज ग्रेटर देन 27s4, और M2X और QY2 तो इक्वल है, तो आंसर 1 देखो, M2X और QY2 तो इक्वल है, और PZ3 से इनका आंसर क्या है ज्यादा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1।